अगर आप खुद नहीं अपने पैसे के बारे में सीखोगे, किसी और ने बोला, मैंने कुछ बोल दिया, किसी और ने बोला, सिर्फ हमने वो बाय करके लगा दिया, तो वो लॉस भी आप ही की वजह से है, उस पर्सन की वजह से नहीं। पहले आप मारुति अल्टो में चल सकते थे, आपने 16 लाख की गाड़ी ले ली लोन पे। तो हाँ, विजिट कर लिया, बोला क्या देखा? मैंने कहा हर स्टोर में कस्टमर चिल्ला रहे हैं। नीचे आके गार्ड खड़े होते थे जो टोकन देते थे। मैंने कहा सुनो, तुम मुझे एक कस्टमर ला कर दोगे, मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपए। Hello everyone and welcome to the Inquisitive Investor. This is Ashish Jindal, co-founder at Grip Invest, and we are bringing to you the Inquisitive Investor, a podcast for the investors by the investors, where we are going to cover investment journey, financial background and personal finance of our guests. And today we have Mr. Ranjit Kumar, who has worked in different operations, supply, sales roles at different companies like Oyo, Let's Transport, Titan and many more. Let's hear more from Mr. Ranjit. Hello Ranjit. Hi Ashish. Thank you for coming down from Janakpuri to our office in Gurgaon. Can we start with a small introduction about yourself? Hi, I'm Ranjit. So I have done my BBA, like Specialization in Management and Strategy from Stratford University. In terms of working, having experience of overall 13 years of experience and with multiple organizations, multiple industries. For example, started my career from Vodafone, then moved to Titan Industries Limited in the jewelry division, Tanishq. From there again Telecom, Airtel. From there to e-commerce, Snapdeal. Good. Then hospitality to Oyo. Right. And then logistic to Rivigo, and currently with Let's Transport. Good. Very, very diversified set of industries and companies. Yes. Yeah. So that always gives me an edge, right? I always feel that adrenaline rush, since I always say the first job always having great impact on you, right? So my first job was from telecom, and it is an industry was full of adrenaline rush. Got it. So that always suits me, and that is the reason why I always say, that Titan is an organization where people used to stay very longer. Right. I stay shorter tenure. The reason is very simple: is too much slow for me. Okay. Right. So again, move back to adrenaline rush, to Airtel, which is telecom, and yes, you always kept on learning new things, right? Got With it. new industries, you always need to rebuild your wheel, learning wheel. Right. And that's always give me, by the end of the day, यार अच्छा ठीक है, कुछ नया सीखा है, Right. कुछ तो मचाया है ना, Hmm. ठीक है, तो hustle is always should be there. Right. And that is the core. What are your investment goals, or what do you think investment is for you? Investment for me, to be very frank, like currently when you talk about, yes, fundamentally I should have certain goal, but I always say I don't really required, और या फिर आप ये बोल सकते हैं यार बहुत जल्दी मैंने वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ लिया था। ठीक है, so most of my But how soon? during my college. Oh, nice. So I think जो मेरी पहली बुक थी, जो आउटसाइड एजुकेशन बुक थी, राइट, सो किसी ने मुझे बोला था यार रंजीत, इफ यू लव मनी देन रीड दिस बुक एंड आई बेट यू विल कंप्लीट द बुक. Right. एंड स्टार्टेड मेरा पहला बुक था जो बियॉन्ड एजुकेशन था, एंड दैट्स व्हाट इट really impacted me. And after that I started reading a lot of books, not only on investment, multiple genre, try to experiment किया. अच्छा ठीक है यार, बच्चा बुक्स पढ़ने में मजा आता है. Okay. So can you tell something that you still remember from that book, Rich Dad Poor Dad? Asset and liability, my whole life is divided into that, right? Have less liabilities, so I don't own vehicle as a result, right? Today travel through Uber, Ola, that's all. I don't own vehicle, neither two-wheeler, nor four-wheelers. Because both are in liability part. Right. Similarly, in terms of house, right, I always say, personally, I don't own house, right, because house is again a liability for me. But yes, I invest in real estate just for diversification. Like 1 year back, first investment I have done in real estate, and then I catch hold of my years that यार बहुत time लगता है, बहुत सरदर्दी है, नहीं कर सकता ये, चलो invest, and that is giving a good return. Got it. So interestingly, I also read Rich Dad Poor Dad, but in 2016, second year of my job, and like just before reading that book, I had like given token money for my Royal Enfield. I still remember that 5,000 rupee check I gave, and the best part was that it was so much in shortage that they said, hey, you will get it in 1 month. I don't know how or
why I picked up this book. I started reading it. I realized, hey, this bike is going to be a liability. Then I just went and asked those guys to cancel the booking. I got my money back. I bought a second hand Avenger. I have one more funny incident that I remember from this. I think finance head of Pepperfry suggested this to me, Kinner Shah. So this book has concept of that guy's dad and his friend's dad, right? Yes, who is a rich guy and his dad is the pure dad. That's the concept. Right. So I started calling this guy, hey, you are my rich dad. And I sometimes called him, Dad, thoda batao kya karna hai? How do I create a passive income? And he gave me some gyan, invest in stocks, etc. Then I really asked him, and I was so naive, right? But how I'm building a passive income in stock, like by investing in stock, because I didn't know that there are stocks that give you dividends, etc. Right. Then he told me about dividends, giving stocks, and that's how you are generating passive income over time. But I always say that is the worst decision if someone going with dividend paying stock. Yeah, so obviously this is not a investment advice for anyone, but it just it just flashed back all those memories of Rich Dad Poor Dad. So because I like this thing, a lot of like people see on YouTube, right? Get dividend paying stocks and all this stuff. But when I say, like I always say, having a passive income, shift it to pure debt. Got it. Yeah. Let it be in debt. If you want to have a passive income, because you want a fixed return, right? You want to have a predictable return. So shift it with the debt genre. Yeah. And whether it could be like through GRIP or anyone else, right? You have multiple other products also where you can shift it. And if you want to go with like, okay, which is pure investment, then shift it to pure equity. If you want to go with equity, then okay, that is unpredictable. Right. Go up. Probability of going higher is good, but you don't know, right? How much it will go up. Right. So that is unpredictable. So just stick to it, what you want. Coming back to your investment goal. So you were mentioning you read book in very early days, and then what happened here? Yes, then I like, but that book doesn't teach you what is exactly in context to Indian market will be an asset. I didn't learn about like, okay, where to invest. Right. Or as usual, I got stuck, जो हर कोई करता है, जब पहली बार टैक्स कटा, so got stuck with the, पूछा किसी से यार कैसे बचाऊं, किसी ने बोला कि इंश्योरेंस ले ले, राइट. फिर कोई कजन आ गया सामने जो एजेंट था, उसने दे दिया एक ट्रेडिशनल प्लान, और मैं फंस गया उस ट्रैप में. फिर आज के टाइम पे जब when I know okay where to invest and everything, I realized that this is the worst mistake I have done. भाई आज के टाइम पे 75,000 रुपए इंश्योरेंस के 2 साल के, and he just took me for like 22 years के लिए मैं फंस गया हूँ. Got it. I think I'll just add, just not belittling insurance. I think insurance is a different instrument for different purpose, and when someone missells it as an investment opportunity, and the other person is not understanding the risks or the investment product or the insurance product, then it's bad, I think. And I think you were actually misled. So it's not on that. I meet with like almost I would say 50-60 people, right? And I ask them a very simple question. Okay, when did you brought the first insurance? Okay, the story is, everyone's story is same. I have seen people like who are in 35-40s also, right? And मेरा पहला सवाल यही होता है, well, कि यार आपने पहला इंश्योरेंस कब लिया है? जैसे यार 20s में था, पहली बार तब टैक्स कटा, वही सेम मेरी स्टोरी. मैंने कहा ओके, वेरी गुड. आपको पता है आपको, और मेरा अगला सवाल ये होता है कि डू यू थिंक कि जो इंश्योरेंस भेजा वो सही था इंश्योरेंस आपके? तो या तो बंदे को पता है कि हाँ यार वो सही था, कि कुछ बंदे बोलते थे सही थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार गलत बेचा उसने मेरे को, मैं फंसा दिया मुझे. जो सही था, व्हेन यू गो इन डेप्थ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने टर्म्स का आपका पीपीटी कितना है, जो कितना टाइम तक आप पेमेंट करोगे, तो वो होता था 16 साल से 20 साल, लंबा टेन्योर का. आइडियली व्हेन यू गो विथ लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेसन्स, जब आप यंग हो, आपको इंश्योरेंस अगर लेना भी है, फॉर एग्जांपल डेट काइंड ऑफ स्टफ है, कुछ सोचने की करने की कोशिश भी कर रहे हो मान लो, ऑल्दो उसके लिए भी ये बुरा ही इन्वेस्टमेंट नहीं है इंश्योरेंस, राइट? तो आपको 4 से 5 साल का लेना चाहिए, शॉर्ट टेन्योर का लेना चाहिए जब आप यंग हो, राइट? बट उसने बेचा आपको लंबा टेन्योर है, क्योंकि उसको जिंदगी भर तक कमीशन आता रहेगा, बिल्कुल, राइट? उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट खत्म हो जाती है, उसका वो कोई सर्विस नहीं था, आप तो ऑनलाइन खुद ही पेमेंट करते हो, राइट? तो इस चक्कर में वो आपको लंबा टेन्योर का बेचता है. तो जिनको लगता था नहीं यार मुझे लगता है मुझे सही बेचा है, उसको भी गलती बिका होता है,
फिर देन ही रियलाइज लाइक जब आप उसको XIR का फॉर्म सिंपल बताओगे ना कि IR का रिटर्न कितना मिल रहा है उसमें, बिकॉज हमें क्या समझ में आता है अच्छा इतने रुपए देने हैं इतना मिलेगा, हाँ यार ज्यादा मिल रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात होती है, हम लोग एब्सोल्यूट में, जब आप IRR देखोगे 4 से 5%, यही रिटर्न है इंश्योरेंस का। इन्वेस्टमेंट फॉर्म में अगर आप चाहिए 4 से 5%, यार उससे अच्छा तो आप बैंक में FD रख लो ना यार। बिल्कुल। And I'll ask you this, okay? And we always try to explain people what is XIRR, IRR, right? Can you tell us what is XIRR in your own way? It's time value of money. आज के टाइम पे जो आपको 100 रुपए अगर मैं आपको देता हूँ और ये 100 रुपए मैं आपको 1 साल बाद देता हूँ, तो 100 रुपए की वैल्यू में भी 90 रुपए हो गई, क्योंकि आप सामान कम खरीद पाओगे, इन्फ्लेशन ग्रो हो चुका होगा, राइट? तो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, दैट इज व्हाट XIRR इज फॉर मी इन लेमन टर्म, कि यार इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है, कई चीजें बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग स्कूल टाइम में हुआ करते थे तब यार पार्ले जी की बिस्किट 5 रुपए की आती थी, पर उसका वेट ज्यादा होता था। आज में वही इन्फ्लेशन बोलते हैं उसे हम, राइट? अब उसका वेट कम हो गया है। तो आप वो महंगाई का जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट्स व्हाट IRR and is. when that is taken into account in your investments or the money that you are putting in any instrument, yes, then you can figure out the time value of money and you can use the XIRR formula. Right. And especially जब आप installment में देते हो, that time it use mainly. Got it. When the multiple tenures or the returns are multiple broken tranches, into yes, different tranches. Fair enough. Cool. So going back to your journey. So then again insurance में फंसा, and then as usual the old school model कि यार FD saving account वही डाल के रखा था पैसा। And then when I reaches like जब OYO पहुंचा, then it realize कि यार चलो करना है, म्यूचुअल फंड है, कुछ सुना है नाम, पर क्या म्यूचुअल फंड नहीं पता। So मेरे जो बॉस हुआ करता था, जो आई थिंक स्नैपडील के बॉस थे, वही मेरे OYO के बॉस थे, he used to be a banker before Snapdeal, right? So उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यार देखिए ये म्यूचुअल फंड है, लगा दे। और मेरी एक आदत है, जब तक मुझे खुद समझ नहीं आएगा तब तक मैं नहीं लगाता हूँ पैसा। मैंने कहा कि अच्छा ये तो बता दिया, पर है कि क्यों लगाना है यार? फिर मेरे को किसी ने समझाया नहीं और उनका टाइम भी नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैज एन एक्सपीरियंस। तो यार उन्होंने बोल दिया यार लगा लेना, ये बता दिया है ना, लगा दे, कौन समझाएगा? देन आई गेट इनटू यार ठीक है सीखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देन आई स्पेंट रफली 1.5 year यार जॉब के साथ साथ कि यार चलो म्यूचुअल फंड है क्या, कैसा म्यूचुअल फंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से भाई सोचने की कोशिश की, अच्छा ठीक है क्या है, रियलाइज किया अच्छा ठीक है कुछ रेशियोज होते हैं, शार्प रेशियो, बीटा, अल्फा, ओके ठीक है इसका इम्पैक्ट कितना है। देन मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज, मैंने कहा ये तो सबको पता है, कुछ नया क्या है इसमें। ओके मैंने रियलाइज की आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इज इन्फो रेशियो। ये नॉर्मली आपको किसी बहुत कम म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे आपको मेंशन किया मिलता है, INF। ओके इन्फो रेशियो आपको बताता है, अल्फा बता देता है कि आपको कितना आपने ओवरऑल कमाया है लाइक रिस्क के अगेंस्ट में, राइट? ओके हाउ ऑल द अल्फा बीटा कॉमन है, वो बेसिक्स है और हर कोई समझ आता है। इन्फो बताता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न कितनी है। गॉट इट। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आज पिछले साल अच्छा दिया तो मेरे को तो अल्फा बीटा अच्छा लगेगा, राइट? बट कंसिस्टेंसी क्या है? म्यूचुअल फंड तो बहुत टाइम से ना मार्केट में। सो लेट्स आल्सो पिक one mutual fund, okay? For example, there are 2-3 types of mutual fund, right? Equity mutual fund, debt mutual fund, right? And mixed mutual funds, right? So I'm talking about equity mutual funds. So equity mutual funds are basically basket of stocks, right? At the end of the day, कुछ पोर्शन में डेप्ट भी रहता है उनका, बहुत नॉमिनल पोर्शन रहता है, right? Now these are basket of stocks and stocks are working based on the market, right? And then let's talk about info based on this. So info teaches about कि for example यार मान लो आपने म्यूचुअल फंड का हम रिटर्न देखते हैं, राइट? जैसे कि 3 साल का रिटर्न कितना था, 5 साल का कितना था, राइट? एंड इट ऑलवेज शो सम ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर, एवरेजिंग करके दिखाता है, राइट? फॉर एग्जांपल कोई म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में था, राइट? और स्टार्टिंग के 5 साल उसने बहुत खराब परफॉर्म किया है, राइट? आपने आज देखा है और पिछले 3 साल में उसने सुपर हाई रिटर्न दिए, राइट? तो आपको उसका सब कुछ एवरेजिंग तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, बिल्कुल, राइट? एंड यू थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा रिटर्न है, राइट? बट एज वी से, राइट, कि past performance is not a guarantee for future, right? But जो उसका इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है, अगर वो कंसिस्टेंट है फ्रॉम स्टार्टिंग, देन वो नंबर बिलीवेबल है, राइट? कि हाँ यार इसके चांसेस हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, राइट? I'll be very honest, Ranjit, I have not gotten that much deep into these things because I'm a product tech or / marketer, right? But I always ask this question, right, in my mind, यार इन्होंने तो मुझे दिखा दिया 3 साल का रिटर्न पे ये बन रहा है,
बट हाउ डज इट, लाइक आई कैन नॉट टाइम इट, राइट? मैंने कब खरीदा? नहीं, आप टाइम नहीं कर सकते। एंड हाउ कैन आई चेक यार, अगर मैंने पिछले महीने किया होता तो कैसे रहता? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना जरूरी है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट फर्दर? आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टॉक मार्केट ले लेते हैं। ठीक है, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में एंड वो शेयर 10% गिर गया। ठीक है, 90 रुपए हो गया। अब आपको 10% ज्यादा रिटर्न कमाना पड़ेगा वापस 100 रुपए में पहुंचना। राइट, ऑब्वियसली। राइट, आपने लूज तो 10% ही किया था ना, टेक्निकल तो वो 10% ही ग्रो लेना चाहिए। तो पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। ऑलवेज सेज कि आपका पैसा अगर आप कहीं पे भी लगा रहे हो, यू शुड इन्वेस्ट क्रिएटिंग की लालच में मत जाओ। डोंट गेट इनटू, और लोग मैक्सिमम लोग जिनका लॉस होता है उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट इसको लग रहा होता है या इक्विटी लग रहा होता है कि वो लॉटरी का टिकट है। राइट, कि एंड दैट इज व्हाट क्रिप्टो इज ऑल अबाउट आल्सो। राइट, लोगों ने इसी चक्कर में लगाए थे क्रिप्टो में पैसा, किसी ने समझा नहीं था क्या चल रहा है। टेक्निकल रूल नंबर यही है उनका, जो मैं बोला पैसा बचाना जरूरी है। आप सब कुछ मत डालो, लिमिटेड डालो, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी जब मिले आप एक्यूमुलेट करो। जब मार्केट गिरता है, राइट, स्टॉक मार्केट को, इक्विटी में अगर आप लगा रहे हो, मार्केट क्रैश होता है, मुझ जैसा इन्वेस्टर मैं बहुत खुश होता हूँ। गॉट इट। मैं मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि यार कहीं लगाना है लगा लो और लगा लो, क्योंकि मेरी एवरेजिंग हो जाएगी। राइट, क्या वो कॉन्सेप्ट क्या होता है जिससे लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टॉक? ये देखो, मैं शॉर्ट टर्म नहीं खेल रहा हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं वॉरेन बफेट वाला मोड में चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, वो आज सब लोग बोलते हैं यार आई थिंक बहुत बड़ा इन्वेस्टर ये हुआ है। वॉरेन बफेट ने अपना 95% वेल्थ 65 ईयर्स क्रॉस करने के बाद कमाया। क्या आप में या किसी में भी वो कन्विक्शन है कि 65 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली 11 साल से 65 ईयर्स तक यार इन्वेस्टेड रहे? नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता। और यही है पूरा बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी मैंने खरीदा 350 का खरीदा जब मैंने आईटीसी खरीदा। ठीक है, 350 का आईटीसी खरीदा, उसके बाद आईटीसी हुआ क्रैश वहां से। मैंने 350 में खरीदा, उसका गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आईटीसी गिरा, आईटीसी आया 200 समथिंग पे, मैंने 200 समथिंग पे खरीदा। मैंने आईटीसी 135 में भी खरीदा। ओके, तो थिंक ऑफ लाइक ए इन्वेस्टर कि यार मैं खरीद रहा हूँ 350 में आईटीसी खरीदा हुआ बंदा, सडनली आईटीसी क्रैश हुआ है, अब 135 पहुंच गया। कोविड के टाइम पे 135 था उसका लोएस्ट जो था, मैंने 135 में खरीदा हुआ आईटीसी। बिल्कुल, ठीक है, मैंने और गिरेगा और खरीदूंगा। एंड मैंने अपनी एवरेजिंग 1-200 कर ली थी। ठीक है, एंड आईटीसी इज ए डिविडेंड पेइंग स्टॉक करेंटली। आज के टाइम पे वो 90% अपना प्रॉफिट डिविडेंड में देते हैं, जो उनका मोटो है। ठीक है, आई नो कि यार मेरे को बिलीव था आईटीसी की, यार ये कंपनी सिगरेट का धंधा कहीं बंद होगा नहीं। ठीक है, ये क्रैश होता है जब भी बजट आएगा, आईटीसी क्रैश होता है क्योंकि बीजेपी एज ए गवर्नमेंट ये टबैको के अगेंस्ट में रहती है, और जब भी बजट में टैक्स बढ़ता है आईटीसी क्रैश होता है। आई केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग, आईटीसी क्रैश हुआ, मेरा एवरेजिंग आज के टाइम 200 है, आईटीसी अगेन 400। कुछ टाइम तक रुका रहा, कन्विक्शन था, पर मैंने कहा 200 के ऊपर नहीं खरीदूंगा, 200 नीचे आएगा फिर से खरीदूंगा। और हमारे मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है जो लॉसेस में जाते हैं इक्विटी में, चाहे वेदर इज म्यूचुअल फंड एनीवन एल्स, राइट? जब मार्केट क्रैश होता है, आउट ऑफ फियर वो पैसा निकालते हैं, और आउट ऑफ फियर इसलिए निकालते हैं उनका पैसा होता नहीं है, तो नीड है, राइट? सब कुछ डाल दिया है। मेरे को एक और क्वेश्चन है इधर। I have seen many memes on ITC specifically. What is that concept about and why there are so many memes on ITC? तो ITC ने जब वापस जब 200 के आसपास पहुंचा ना, ITC ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के लिए बढ़ा नहीं। ओके, वो स्टैग्नेंट था। ओके, ऑब्वियसली लोगों का मीम ये हो गया कि यार ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कंपनी तो बहुत बड़ी है। राइट, ये बढ़ ही नहीं रहा, क्या कारण है? ऑब्वियसली उसका कारण यही था कि ITC आज के टाइम पे ऑन पोर्टफोलियो और ब्रांड वैल्यू वाइज आप तो लगता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, बट आज भी 60-70% वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें लगे हुए हैं। बेसिकली 70% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम टोबैको, और जो उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट? और टोबैको एज ए बिजनेस इज अगेंस्ट, राइट? गवर्नमेंट तो अगेंस्ट ही है, ऑब्वियसली टैक्सेस बढ़ाती है, अल्कोहल टोबैको में उसी से गवर्नमेंट की अर्निंग है, राइट? बजट में इंक्रीज होता है। तो आईटीसी इसलिए स्टैग्नेट रहा। दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर नेम, राइट, from tobacco only company to diversified business company into आशीर्वाद आटा हो गया, क्लासमेट की बुक हो गई, स्टेशनरी हो गई, होटल्स हो गए,
राइट, उसमें डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा सनफिश के बिस्किट हो गया, राइट, FMCG मल्टीपल इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पे वो ना बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस कोई प्रॉफिट में डे वन पे होगा नहीं, राइट, आप मार्केटिंग में काफी स्पेंड करोगे, तो वहां से उनका लॉस होता है। उनका प्योरली जो प्रॉफिट आ रहा है वो टोबैको से आ रहा है मेनली, और यही रीजन है कि मार्केट जो सेंटीमेंट है, तो ऑब्वियसली जो FIs DIs दे विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। आज के टाइम पे ITC हाइस्ट ले जा रहा है बिकॉज मार्केट में न्यूज है ITC विल डिसइन्वेस्ट। Disinvestment means they will divide sell themselves. off their companies. नहीं, they will divide themselves Okay, into each brand. got it. Right, वो अपने आप को डिवाइड करने वाले, आज के टाइम पे वो कॉन्ग्लोमरेट है, Got it. राइट, तो वो अपने आप को जल्दी अमेलगेट करने वाले हैं, वो अलग अलग ब्रांड में डिवाइड होने वाले हैं, स्टॉक में लिस्टिंग अलग अलग ब्रांड की हो जाएगी। इस वजह से एक हाइप बनी हुई है। टेक्निकली फंडामेंटल देखो तो ITC आपको एज ए रिटर्न आज के टाइम पे 7% का देता है इन डिविडेंड। Got it. तो आपके लिए तो यार इक्वल टू बैंक हो गया, FD हो गया, किसी गवर्नमेंट बैंक में लगा रहे हो FD हो plus गया, the appreciation, राइट। तो आपको तो यू शुड हैप्पी। ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि कोई कंपनी जो प्रॉफिट का मैक्सिमम कस्टमर को दे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट का डिविडेंड में ना दे, कंपनी में वापस लगे ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मेरे लिए टैक्स आ जाता है, राइट, वो मेरे लिए टैक्सेबल होता है, तो बेटर है कि मेरी एप्रिशिएशन शेयर की वैल्यू right, and also companies also trying to build bigger empire. Cool, coming back to the investment. राइट। तो यार म्यूचुअल फंड फिर मैंने फाइनली स्टार्ट किया रिव्यू में पहुंचकर। ठीक है। पहला म्यूचुअल फंड मुझे लेना था, तो मैंने कहा यार क्या लूँ, तो मेरे को पता है रिस्क टेकिंग तो है, मेरे पास एपेटाइट है, रिस्क ले सकता हूँ, सब कुछ डालता नहीं हूँ। मेरा पहला म्यूचुअल फंड था SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, जिसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तब पैसा बाजार ने पहली बार डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था, एंड मैंने पैसा बाजार पे इन्वेस्ट किया, एंड देन मेरे को पता चला एज ए प्लेटफॉर्म ग्रो एज ए प्लेटफॉर्म, एंड आई लव द UI। ऑल्दो क्योंकि मैं बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहा था कि ज़ीरोधा का कॉइन्स का प्लेटफॉर्म और ग्रो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आया था, राइट, बट ग्रो का मार्केट शेयर ज्यादा बड़ा है, रीजन उसका UI है, राइट, ज़ीरोधा का थोड़ा ओल्ड स्कूल है कॉइन्स का, एक्सपीरियंस इज यस बेटर, बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो ग्रो में इन्वेस्ट किया, देन आई क्रिएटेड माई पोर्टफोलियो कि यार उस वक्त जो कि मैं वापस से रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिएट माई पोर्टफोलियो किया जिसमें 40% मैं लार्ज कैप में लगाता हूँ, बाकी मैं मिड कैप में लगाता हूँ, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 20% का मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू रहता है, ठीक है, एंड 40% बट मैं लार्ज कैप में फोकस रखता हूँ, एंड देन आई गो विद डिवाइडेड इट फर्दर इनटू मल्टी कैप आल्सो, लाइक पराग पारिक इज अ मल्टी कैप फंड, ठीक है, पराग पारिक में लगा दिया और कुछ मिड कैप में लगा दिया, एंड दैट्स व्हाई। और मेरे पास म्यूचुअल फंड के नाम पे सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, नो डेट, गॉट इट, ठीक है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो वैसे ही रखता हूँ, और आज के टाइम पे मैं लार्ज कैप से शिफ्ट करके इंडेक्स फंड में शिफ्ट हो रहा हूँ, बिकॉज लार्ज कैप में पोस्ट जब सभी लेकर आया था कि लार्ज कैप, पहले लार्ज कैप कमाती कैसी थी कि लार्ज कैप पास एक फ्रीडम होता था कि यार कहीं भी वो स्मॉल कैप पे भी लगा पाते थे, स्टॉक पे लगा पाते थे और मिड कैप पे भी लगा पाते थे। अब सभी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इतना परसेंटेज में लार्ज कैप में लगा के रखना पड़ेगा, जो लार्ज कैप अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता था, राइट, रिटर्न दिखाता था, क्योंकि वो वहां पे डाइवर्ट करता, अब नहीं कर पाता। तो आज के टाइम लार्ज कैप की जगह पे इंडेक्स फंड इज ए मच बेटर ऑप्शन। क्या होता है इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड आप निफ्टी 50 है तो फॉर एग्जांपल वो रेप्लिकेट ही कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं सेम प्रपोर्शन में वो उन्होंने ऑप्ट किए हुए हैं, राइट, उन्होंने रेप्लिकेट किया। आपका ऑप्शन आप चाहे तो निफ्टी 50 का परचेज कर लो, डायरेक्ट जाकर निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले लो, पर आप इतने सारे स्टॉक्स तो ले नहीं पाओगे, राइट, इतना पैसा भी आपको एक बार में कौन लगाएगा, राइट, हर एक का एक स्टॉक भी लेने जाओगे, तो आप इंडेक्स फंड में लगा दो। इंडेक्स फंड में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। क्या होता है थोड़ा आप बताते रहिए, ठीक है यार। एक्सपेंस रेशियो होता है, कोई भी कंपनी जब कोई AMC आपका स्टॉक वगैरह खरीदती है, राइट, ये बैकएंड पे मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड हमने लगाया, पीछे एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो स्टॉक्स बाइंग सेलिंग कर रहा है एक्टिव फंड में, राइट, अपने दिमाग से कि यार ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, ये स्टॉक बुरा करेगा, ठीक है, उससे बाइंग सेलिंग करता रहता है। ये करने के लिए ऑब्वियसली उसके खर्चे, उसकी सैलरी है, राइट, AMC की अपनी सैलरी है, अपने खर्चे हैं, वो खर्चे वो निकालती है म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर के एक्सपेंस रेशियो से, गॉट इट, ठीक है। तो आपने 100 रुपये लगाया, एक सर्टेन एक्सपेंस रेशियो है, वो साल का एक्सपेंस परसेंटेज होता है, आपने कितना पैसा लगाया उसके में, राइट, वो प्रोटा बेस पे पर डे निकालते हैं, चाहे आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करे या ना करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड, दैट्स व्हाई ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस, क्योंकि आपका विद टाइम तो बढ़ता रहेगा ना, राइट, तो डेली बेसिस पे निकालती है और वो परसेंटेज पे निकालेगी आपको, ओके, राइट, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू का परसेंटेज पे निकालती रहेगी, तो वो प्रोडा बेसिस परसेंटेज में निकालेगी ऑन ए डेली बेसिस,
क्योंकि आप कल भी बेच सकते हो, तो इसलिए वो डेली बेस पे भी निकाल सकते हैं, राइट। आपको रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपको इतने में स्टिक रहना ही है, एक्सेप्ट फॉर ELSS, राइट। तो वो अपने एक्सपेंस रेशियो निकालती है, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज। जहाँ पे आप इंडेक्स फंड की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, किसी का टैलेंट नहीं लग रहा उसमें। हाँ, उन्होंने तो रेप्लिकेट किया है, राइट। तो वहाँ पे इसलिए अब वो कम आपसे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लेते हैं, क्योंकि यार जहाँ पे हाँ, जब हमने कुछ आपको वैल्यू एडिशन दिया ही नहीं है, तो किस चीज का एक्सपेंस रेशियो होती है एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स का। इसलिए वो उनकी जो फीस होती है, वो सैलरीज हैं, वो सब उसी से निकलती हैं। तो हाउ मच रिटर्न डू यू थिंक इज अ गुड रिटर्न इन इक्विटी? इफ एनीथिंग बियॉन्ड 12 is good return in equity, right? Ideally I prefer 15+, but मैं 12 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बेंचमार्किंग जो है, बिकॉज आई गेट नॉर्मली 17-18% मुझे मिल जाता है। मैं म्यूचुअल फंड की रेटिंग की बात कर रहा हूँ, करंटली मेरा एक्सेस है 17-18% चलता है, ठीक है। बट आइडियली मैं 12% लोगों को बोलता हूँ, ताकि एक्सपेक्टेशन वैसी रहे, वो ओवर लालच में ना जाए। आपकी एक्सपेक्टेशन लो होती है, मिल गया तो बोनस समझ लो, राइट। द सेम थिंग मैं जब भी कोई किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ, मैं बहुत क्लियर कट में बोलता हूँ, देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो 1.5 ईयर्स के लिए, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहेगा, ओके, एंड दैट इज द मार्केट एवरेज, ओके, ठीक है। उससे पहले पॉजिटिव आ गया तो इट्स अ बोनस फॉर यू, गॉट इट। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल कि आप जब इन्वेस्टमेंट किसी करवाते हो या कहीं किसी को बताते हो, राइट, कि कहीं पे इन्वेस्ट करने का, उसको माइंडसेट उसका रेडी कर दो पहले, गॉट इट, एंड देन ओनली ही विल बी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। आई हैव डाइवर्सिफाइड FDs into like small finance banks. Got it. Small finance bank में जब 9% इंटरेस्ट था, मैंने तब डाल दिया था, ठीक है। आज के टाइम पे भी there is like current टाइम में बोलूँ तो आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो आपको एज ए नॉन सीनियर सिटीजन, अगर आप जनरल पब्लिक हो, आपको 9.10% का रिटर्न देता है। So you go for the maximum tenure? No, tenure उसमें obviously 4 years 5 years का ही रहता है, ठीक है। तो मैं कम रखता हूँ, थोड़ा ट्रांचिंग में रखता हूँ, मल्टीपल स्मॉल अमाउंट्स का मैं FD करके रखता हूँ कि भाई मुझे अगर जरूरत पड़ी इन द वर्स्ट सिनेरियो, तो मेरा ऑप्शन है, आई कैन टेक इट आउट, दैट इज FD। सम कुछ पैसा मेरा सेविंग्स में रहता है, राइट। वो पैसा मैं अपने आज के टाइम पे शॉर्ट टर्म, जो जैसे मैंने कहा कि बिल डिस्काउंटिंग, जहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न आ जाता है, वहाँ पे डाइवर्स कर रखा है। मुझे पता है हाँ 2-3 महीने बाद फिर से आ जाएगा वापस, तो यार वो डाइवर्स कर लो, ठीक है। द पॉइंट इज कि सब कुछ इक्विटी में मतलब राइट। तो सिमिलरली जब मैंने स्टॉक मार्केट में देखा, मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ पे तो रिटर्न ठीक आ रहा है स्मार्ट म्यूचुअल फंड में। मेरे आसपास के भी जो फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया, हमें तो वो भी नहीं आया, ठीक है, कैसे लगाना, क्या लगाना। तो मैंने ऐसे ही क्या थी कि ऐसा है, माइंडसेट बहुत क्लियर रखो। इक्विटी में लगा रहे हो तो 5 साल तक आपको नहीं निकालना है लार्ज कैप में पैसा, 5 साल तक आपको बड़े रहना है। स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो भाई 10 साल भूल जाओ, और माइंडसेट करके चलना, ये 10 साल तक भूल जाओ, पैसा आप निकालोगे नहीं। मिड कैप में लगा रहे हो तो 7 से 8 साल, और सिमिलरली मल्टी कैप में है तो 6 से 7 साल, आप तब तक पैसा छुओगे नहीं। और ये अगर अपना माइंडसेट क्लियर है तो ही लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि उससे जरूरत है आपको, तो यार मत लगाओ, समझ। आप चुपचाप डेट में रहो, ठीक है। 5 साल से पहले आपको जरूरत है, डेट में रहो, स्टिक टू इट। बट अगर आपकी प्लानिंग है इतने लंबे नहीं, तभी लगाओ, और वो पैसा लगाओ जो इतने टाइम तक आप छुओगे। राइट। और ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, और मैक्सिमम लोगों का होता ही है कि लोग ग्रीड में चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई एडवाइजर है, राइट, उसको 1% वो रेगुलर बेचता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, उसको 1% मिलता है, तो वो तो आपको यही बोलेगा ज्यादा लगाओ, सही बात सर, राइट, और होल्ड करो, ज्यादा लगाओ, होल्ड करो, ठीक है। बट जरूरी चीज ये है, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू फ्यू फाइनेंशियल पीपल, फाइनेंशियल वर्ल्ड के भी लोगों से बात कर रहा था कि यार मैक्सिमम जो इस इंडस्ट्री में है ना, आपको वो सामान बेचा जाता है जो वो बेचना चाहते हैं, वो नहीं बेचा जाता जो आपको जरूरत है, राइट। और एक जोक भी है इसी के अराउंड, आई थिंक मेरे को जब व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग फ्यू पीपल हु आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, मैं बोला था कि देयर इज अ पर्सन हु वेंट टू ए न्यू कंट्री, राइट, और उसका पैसा था, उसने बोला यार मुझे इन्वेस्टमेंट बैंक, मेरे को पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो उसने कुछ बंदे से पूछा अपने दोस्तों से, यार कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर, इससे लगाना है। हाँ मिलाता हूँ, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। वो लेकर गया और उसने बोला ठीक है अब बताओ। तो उसने बोला यार इन्वेस्टमेंट बैंकर चले जाओ, रास्ते में लेकर गया, मतलब वो यॉक दिख रहा है तेरे को? हाँ। तो ये उसका है। ये होटल दिख रहा है? हाँ ये उसका है। वो बंगला दिख रहा है बड़ा सा? हाँ ये उसका है। उस इन्वेस्टमेंट बैंकर। हाँ वो सब तो ठीक है, बट इसके क्लाइंट्स के कहाँ पे? एंड दैट इज जोक।
Right? Good one. Yeah. So the point is कि आपका पैसा है, अगर आप खुद नहीं अपने पैसे के बारे में सीखोगे, किसी और ने बोला, मैंने कुछ बोल दिया, किसी और ने बोला, सिर्फ हमने वो बाय करके लगा, तो वो लॉस भी आप ही की वजह से है, उस पर्सन की वजह से. So you shared your investment journey. What is your investment goal, or why do you invest? I invest for my retirements. Got it. And define what is retirement for you? यार मेरा नंबर है currently, because it will change. Sure. ठीक है. And it will change because of one reason, that's called I call it the lifestyle inflation. Okay. So and people struggles with lifestyle inflation. Can you explain lifestyle inflation before you tell this number? Okay. So lifestyle inflation means बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि यार मेरे पास ना पैसा बचता नहीं है. बहुत कॉमन सा डायलॉग है लोग से. यार मेरा पैसा बचता ही नहीं है. I asked them very simple question. When did you start? आपका जो पहला जॉब था तो आपकी सैलरी कितनी थी? तो का आंसर बहुत नॉमिनल सैलरी में आता है, राइट? What percentage you are able to save that time? And compare it with your salary currently and what percentage you are able to save now. Got it. So you're saying that number अगर ये परसेंटेज आपका सेविंग का घट रहा है, बिल्कुल राइट, सैलरी बढ़ रही है, then you are a victim of lifestyle inflation. कि आपका पैसा बढ़ा, आप ऑब्वियसली पहले आप मारुति अल्टो में चल सकते थे, आपने 16 लाख की गाड़ी ले ली लोन पे क्विकली कि यार मेरे पैसे बढ़ गए, 16 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ. आपने घर लोन पे फटाफट ले लिया, क्रेडिट कार्ड से और स्पेंड किया, हर साल आप फोन बदलने लग गए, राइट? दीज आर ऑल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन विक्टिम, सिम्टम्स ऑफ लाइफटाइम इन्फ्लेशन. राइट. चलो. सो जब आप इनमें जाते हो एंड विद दिस फिगर्स, राइट, जब आप लाइफटाइल इन्फ्लेशन विक्टिम बनते हो तो आपका ऑब्वियसली जो ये फिगर है ये बढ़ता रहेगा. और ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक इन्फ्लेशन भी है जो विथ टाइम ऑब्वियसली आपके खर्चे बढ़ेंगे, राइट? अगले साल शायद आप मैरिज हो जाओगे, राइट, बच्चों के एजुकेशन है, आपके खर्चे बढ़ेंगे, राइट? और ऑर्गेनिकली जो बेसिक खर्चे वही बढ़ने लग जाएंगे, राइट, विद इन्फ्लेशन. अब ये जो फिगर है आज के टाइम में जो मेरे खर्चे हैं, मैं अगर उस हिसाब से सोचूं तो मैंने सोच रखा है कि यार ठीक है, अगर 8 करोड़ 10 करोड़ का नंबर आ जाएगा, देन इट्स ए गुड फंड फॉर मी टू रिटायर, राइट? और उसके बाद फिर मेरा इन्वेस्टमेंट का टेन्यूर सिस्टम बदल जाएगा, राइट? करंटली जो मेरा मेथोडोलॉजी है इन्वेस्टमेंट का, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक सेफ्टी नेट रखा हुआ है कि यार दैट कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल आपके लिए 1 करोड़ हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है. हर किसी का सेफ्टी नेट का डेफिनेशन लगा हुआ. 1 करोड़ या ऐसे नंबर जैसे टच हो जाएगा एंड वेयर जहाँ मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरा डेट, ठीक है, जहाँ पे मैंने बैंक एफडीज ये सब मिलाकर, इट इंक्लूड माय करंट अदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसको P2B में भी बोल सकते हो, P2B में भी लगा रखा है थोड़ा पैसा, ये ओवरऑल आपका अगर 1 करोड़ हो गया, देन यू स्टार्ट टेकिंग हायर रिस्क बेट्स. गॉट इट. क्योंकि आपका वो सेफ्टी नेट टच हो चुका है. आपने अब आप सेफ्टी नेट, आपको पता है कि यार मैं गिरूंगा तो 1 करोड़ तो है ही ना. फॉर एग्जाम्पल यार 1 करोड़ है तो, राइट, जैसे केवीसी में होता है कि पड़ा हुआ 3,20,000 फिर 12,50 ऐसे पड़ा हुआ है, उससे नहीं आप गलत भी आंसर दोगे तो उसके नीचे नहीं, राइट, उसके नीचे नहीं जाओगे तो आपको पता है कि ठीक है अब मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ क्योंकि मेरी रिटर्न भी है, मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट अपना बढ़ाओ. पर ये आप तभी बढ़ा सकते हो अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे हो तो. पर आइडियली तो उस फिगर तक पहुंचने के लिए आपको लाइफटाइम इन्फ्लेशन से बचना पड़ेगा. और मेरे केस में ये है कि लाइक मैंने इनिशियल करियर में क्या कि यार ज्वेलरी लाइन में काम कर लिया, तो जो मोह माया से ना वो तो वैसे ही देख देख के मन उब रखा है. So your lifestyle inflation is not high. Not high. So I always compare, मेरी पहली जॉब 7,500 रुपए सैलरी की, राइट, वोडाफोन. That is my first job. मेरी सैलरी 7,500 रुपए होती थी महीने की, जो इन हैंड आती थी अकाउंट कट के. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट इंसेंटिव कुछ मिल गया तो मिल गया. और मेरा मैनेजर हुआ करता था, वो मुझे अलग से लालच दिया करता था. तो डायरेक्ट तो इसे लालच समझ कर, एंड दैट इज वन पर्सन जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ सेल्स में आई थिंक जो भी हैं वो उसकी वजह से है. ही टीचेस मी मल्टीपल थिंग्स. तो उसने बोला लालच समझ, ग्रीड समझ, कुछ भी समझ, इंसेंटिव जो मिलेगा सो अलग. मुझे दिन के तो इतने सेल लगेगा, मैं अपनी तरफ से देखो इतने पैसे दूंगा. उसके डील के टारगेट होते थे, अगर कभी कहीं से पूरे नहीं हुए
तो मुझे बोलता था देख अगले 2 घंटे मुझे ना स्टोर क्लोजिंग से पहले इतने नंबर चाहिए और मेरे को आज के दिन क्लोज करना, तू ला दे, पर सेल तेरे को 1000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, राइट। और उसने मुझे सिखाया था कि यार अपना एक प्रोसेस बना दे कि तू ना भी होगा ना तेरे नाम की सेल आएगी। ये कैसे करोगे? मैंने फिर वहां से सीखा, मैंने कहा हाँ यार आई टेस्टेड। तो मैं आपको पहले अपनी बात तो बड़ी सही कह रहा है। फर्स्ट जॉब की ना मैं आपको स्टोरी बताऊं तो यार मैं ऑब्वियसली सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट जॉब है, मेरा काम था प्रमोटर का, फर्स्ट जॉब। अब प्रमोटर होता क्या, आपने वोडाफोन स्टोर में ना बाहर देखा होगा एटीएम जैसी मशीन होती है, वहां पे बंदा पैसे डलवाता है, डालता है, बिल देता है पोस्टपेड का। मेरा काम था उसको हेल्प कर, और उसी बीच में जिस पोस्टपेड के लिए बिल दे रहा है वो उसको कन्विंस कर एक और पोस्टपेड लेने के लिए विदिन दैट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में वो एक और पोस्टपेड ले, एक तो उसको वैसे ही दर्द हो रहा है पैसे देने में, उसको कन्विंस कर एक और बेचने की कोशिश कर 5 मिनट में। 10 मिनट तो बहुत कम ही है, उसी हेल्प टाइम में बेच सकता है। सो फर्स्ट डे था, मैं गया, अब यार हर कस्टमर मुझे गालियां दे रहा है, सुना रहा है यार तुम्हारा वोडाफोन बेकार है, ऐसा है वैसा है। और उसको तुम एक और कैसे बेचोगे? हाँ कैसे बेचोगे, ऑब्वियसली स्टोर कोई पेन लेकर विजिट कर रहा है तो उसको बहुत पेन है, वरना तो कस्टमर केयर से बात कर लेता ना, तभी विजिट कर रहा है, यार तुम्हारा वोडाफोन ऐसा है, ये बुरा है, वो है तुम्हारा प्लान अच्छे नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, फिर मैनेजर ने शाम को आया, बोला क्या हुआ, मैंने उससे वही सेम डायलॉग बोला, मेरा वोडाफोन बेकार है, ये वो है। ठीक है, बिल्कुल भाई आता है। तो बोलता अच्छा ठीक है, ये बता तेरे घर में कौन सा कनेक्शन यूज होता है? तब बोलता तू कौन सा यूज करता है? मैंने कहा मैं एयरसेल होता था उस वक्त, मैं एयरसेल यूज करता हूँ। ओके, तेरे पापा कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं? मैंने कहा वो एयरटेल यूज करते हैं। तो वोडाफोन कोई नहीं यूज करता? मैंने कहा नहीं, कोई यूज नहीं करता। तो अच्छा एक काम कर, सीपी में स्टोर था, तो ड्रेस बदल फटाफट, सीपी में ना हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर का स्टोर है, हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर विजिट कर, तेरे को 2 काम करना है, वहां पे जाके उनका पोस्टपेड प्लान लेकर आना है और तेरे को एनालाइज जस्ट देखना है क्या हो रहा है उधर। मैं गया, एज वेल कपड़े बदले, गया सब स्टोर में विजिट किया, आया वापस, हाँ विजिट कर लिया, बोला क्या देखा? मैंने कहा हर स्टोर में कस्टमर चिल्ला रहे हैं। तो बोला अच्छा, एक्सपेक्ट किया था मैंने, बोला अच्छा और क्या एनालाइज किया? क्या तूने डिफरेंस चीज नोटिस किया कि यार वोडाफोन में और उन स्टोर्स में? मैंने कहा यार वहां पे कोई कस्टमर की सुनने वाला नहीं था, यहाँ पे हम लोग सुनते हैं कम से कम। बोला ठीक है, तो भाई लेसन तेरे लिए ये है कि सेल्स का पहला लेसन कि तेरे को अपने, और बोलता उनका प्लान लिया है? हाँ। बोलता प्लान देख, बता किसका प्लान बेटर है, वोडाफोन का या उनका? मैंने कहा वोडाफोन का प्लान बेटर है। तो लेसन यही है कि आपने प्रोडक्ट पे पहले बिलीव होना चाहिए। दिस इज लेसन नंबर 1 फॉर सेल्स। अब तेरे को प्रोडक्ट में बिलीव है? मैंने कहा हाँ अब है। बोलता अब तेरे को ना सारे प्लान तेरे को याद होने चाहिए, उनके भी और अपने भी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस उसने मेरे को उस वक्त से सिखाना स्टार्ट किया। दैट्स माय फर्स्ट डे, राइट। और फर्स्ट डे में मैं एक और चीज बताता हूँ, हुआ क्या कि मेरे को ना बोला गया था कि भाई तुम्हें स्टोर के अंदर रहना है, और इसने मुझे खड़ा कर दिया बाहर। ठीक है, मैंने कॉल किया अपने ये ट्रेनर को, ट्रेनर को कॉल किया, और मैंने कहा यार तो क्या हुआ? मैंने कहा यार इसने बाहर खड़ा कर दिया, मेरे को तो अंदर रहना था, इसी में इसने चला बाहर खड़ा कर दिया, यहाँ पे मैं कुत्तों की तरह लोगों के सामने ऐसे ऐसे बेच रहा हूँ, चल क्या रहा है? तो बोलता है अच्छा किसने बोला है, कौन है मैनेजर? तो उसका नाम हुआ करता था अक्षय मोरादा। मैंने कहा अक्षय मोरादा? बोलता हाँ, उसको कंपनी में कोई कुछ नहीं बोल सकता। पीछे से वो खड़ा था, क्या हुआ मेरी कंप्लेन कर रहा है? मैंने कहा हाँ कोशिश कर रहा था। तो फिर लाइक एंड ही वाज वन ऑफ दोज गाइज कि यार फिर उसने मुझे बताया कि यार उसने बहुत सारी चीज सिखाई बेसिकली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसने सिखाया, उसने एक चीज सिखाया कि यार अच्छा ठीक है। फिर उसने वही बोला, तो उसने रूम पे बुलाया, बोलता है भाई एक सिंपल सा है, तू वहाँ पे खड़े हुए सेल करना, तेरे को अंदर की सेल नहीं टच करनी है। जो ऑर्गेनिकली सेल आ रही है ना उसको तेरे को कुछ नहीं करना, जो ऑर्गेनिक सेल आ रही है वो आएगी, वो उनके पास है, जो अंदर बैठे हैं उनके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तू मुझे एक सेल करके दे पोस्टपेड कनेक्शन, मैं तुझे 300 रुपये दूंगा अलग से। इंसेंटिव जो स्टोर का है वो अलग छोड़ दे, 300 रुपये मेरी जेब से आएंगे तेरे को। मैं कहा अच्छा, बोलता 2 सेल करके दे, तेरे को मैं 800 रुपये दूंगा। ओके। 3 सेल करके दे 1000 रुपये। मैंने कहा ओके, बहुत अच्छी बात। बोलता अब पर सेल तेरे को वहीं से करनी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैं नीचे गया, नीचे आके गार्ड खड़े होते थे जो टोकन देते थे,
मैंने कहा सुनो, तुम मुझे एक कस्टमर ला कर दोगे, मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपए। दो कस्टमर ला कर दोगे, दूंगा तुम्हें 200 रुपए, 3 कस्टमर दोगे 250 रुपए। तो जो भी कोई कस्टमर आता था जिसको वो टोकन देते थे, राइट, क्या करना है, नया कनेक्शन लेना है, आप अंदर क्यों जा रहे हैं, अंदर वेटिंग होगी, आप जाइए इनसे मिलिए। तो अंदर वाला क्राउड आपको बाहर देने लग गया। तो क्या होता था कि मैं ऊपर होता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे उसकी एक कस्टमर से डील कर रहा हूँ, ऊपर लाइन लगी होती थी कस्टमर की बैठे हुए। हाँ, मैं बैठा हूँ कि भाई लाइन लगी है, फॉर्म सबको वो दे के भेजते थे, जाइए जाइए आप रंजीत सर से मिलिए, सीधा इनसे आप वेट कराएंगे नीचे जाके टोकन में, तो आप वेट करोगे टोकन ले लेके अपनी बारी का। तो वो आते थे। अच्छा ये हो गया। दूसरी चीज मैंने कहा यार ये तो लक है ना, कोई इसने विजिट कर लिया, कब तक करोगे आप। देन मैं कहा ठीक है, उसने बोला कि अपने लिए प्रोसेस बना, तो मैंने प्रोसेस बनाया, ठीक है। मैंने कहा स्टोर पे कितने रुपए की सेल आती है, तो हम जब एक सेल करते थे हमारे स्टोर में पैसा आता था 1000 रुपए एज ए रेवेन्यू, जो स्टोर के पीएनएल के हिसाब से दिया था। मैंने कहा ठीक है, एक स्टोर के 1000 रुपए आते हैं। तो मैंने कस्टमर को बोला, मैंने कहा ये आप नंबर ले लीजिए, आपको अपने नियर बाय स्टोर विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कॉल करो, प्लान आपको फोन पे बता दूंगा, ठीक है। आपके यहाँ पे बंदा आएगा, फॉर्म लेकर, आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, डॉक्यूमेंट देने हैं। गार्ड को भेजता था 50 रुपए देकर, मेट्रो से जा, उसे घर जा। मैंने कहा मेरे लिए प्रॉफिट स्टोर के पीएनएल में 950 रुपए बचते हैं, और बाकी सब स्टोर से बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई नोएडा की सेल भी तुम्हारे पास आ रही है, कहीं की भी सेल तुम्हारे पास रही, कस्टमर को विजिबिलिटी है, बैठे बैठे मिलता था। तीसरा चैनल बनाया था मैंने उस वक्त कि यार जितने कॉर्पोरेट होते थे सीपी में, उनकी प्रॉब्लम होती थी, उनके ना कॉर्पोरेट वाले जैसे वोडाफोन का जो कॉर्पोरेट टीम होती है वो विजिट नहीं करते थे। कोई नया कनेक्शन आया, विजिट नहीं किया, अरे कौन जाएगा आप देने के लिए नया कनेक्शन। उनको जितने भी एडमिन वाले थे उनको बोल रखा था, एचआर और एडमिन टीम को, एडमिन टीम ही सारा मैनेज करते थे। अरे तुम वो बोलते थे, अरे जाके रंजीत भाई से मिलो, जाके जाओ मिल लेंगे, आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं, आपको हाथों हाथ मिल जाएगा नंबर। तो वो विजिट करते थे, तो वो प्रोसेस बना दिया कि मैं नहीं भी हूं ना तो भी मेरे नाम की सेल आ रही थी। तो जो आपके मैनेजर ने पहली चीज सिखाई थी, दूसरी हाँ, पहली तो ये थी कि प्रोडक्ट पर जानो और अच्छा बिलीव इन योर करो। हाँ, दूसरा था कि अपने आप कैसे हो चीजें, राइट। तो जो प्रोसेस आप बनाओ कि यार आपके लिए लोग काम करें, राइट, नंबर आपके हो जाएंगे अगर आपके इनपुट से। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार आप अगर इनपुट फोकस्ड हो ना, आपके नंबर अपने आप हो जाएंगे। और ये मैं ना सेल्स में बिलीव करता हूँ कि यार आपको बेचना नहीं है। और मैं सर्विस इंडस्ट्री में इस चीज को बोलता हूँ, और ऑब्वियसली बना बनाया टर्म है, देयर इज नो ऑफिशियल टर्म फॉर इट, मैं इसे बोलता हूँ सर्व टू सेल। सर्व टू सेल। आप सर्विस अच्छी दो, सेल्स अपने आप हो जाए। आपको सेल्स पे फोकस नहीं करना। एंड और ये क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ना, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, आई थिंक जापान में यूज होता है। फोकस ऑन प्रोसेस, इनपुट आपका फोकस है, प्रोसेस अगर आपका सही है, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। आपको आउटपुट पे फोकस करना है, अगर जो आउटपुट पे फोकस करता है उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो आपको इनपुट की सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है, और आपके नंबर होते रहेंगे। तो मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ, और आई थिंक दैट्स व्हाट टीचेस मी। जब उसने मुझे सेल्स बताया ये चीज, और मैं उस बीच में उसने मेरे को कई ऐसे ट्रिक्स बताए कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस नंबर्स होते थे, राइट, और नंबर का बड़ा क्रेज होता था कस्टमर्स में कि यार मुझे फेवरेट नंबर चाहिए या अच्छा नंबर चाहिए, इजी टू रिमेंबर नंबर चाहिए। तो उसने बोला कि यार नंबर की चॉइसेस कैसे करवानी है। तो उसने मेरे को बहुत सिंपल सा टर्म बताया कि यार नंबर की चॉइस करवानी है ना, तो उसने मुझे बताया वो स्प्लिट टू सेल वाला ऑप्शन होता है ना एक्सेल में, वो बताया, उसने वो सिखा दिया। उसके बाद मैं हर कस्टमर को फेवरेट नंबर देता। कस्टमर सर्विस अच्छी है, कस्टमर तुम्हारा नाम लेते हुए आएगा, राइट। तो ये बेसिक से सिंपल से ट्रिक्स हैं, नथिंग एल्स। तो उसने बताया, और वो ऑफिस के टाइम के बाद करता था। कभी उसके नंबर नहीं हो रहे, टारगेट कंप्लीट करने ये मंथ के या वीकली टारगेट कंप्लीट करने, तो बोलता था भाई तेरे को आप 1000 रुपए दूंगा सेल ला कर दे मेरे को, अभी एंड हो गया, डे एंड हो गया, अभी तो सेल मिलना मुश्किल है, तेरे को 1000 रुपए पर सेल दे रहा हूँ, मेरे को 2 सेल ला कर दे कहीं से भी, 1000 रुपए फिर से ले ले पर सेल। Seems like a great manager. हाँ, he is, right. तो obviously, तो the point is कि उस तरीके का जो मैनेजर था ना, और कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में ना, हम सबको लगता है कि हम सब ना अपनी स्टोरी के हीरो हैं, पर एक्चुअली हम अपनी स्टोरी के साइड हीरो हैं। हमारी स्टोरी के हीरो हमारे आसपास के लोग, जिनकी वजह से हमारी वैल्यू अपलिफ्ट हो जाती है। डीप बातें कर गए हम थोड़ी।
चलो वापस आते हैं इन्वेस्टमेंट वाली चीज पे। आपने बताया कि आपका टारगेट नंबर 8 to 10 CR है, एंड यू एक्सप्लेन्ड अबाउट दैट यू कैन प्ले अराउंड आफ्टर हैविंग अ comfort of 1 CR. Yes. So where do you stand today in terms of this target of 8 CR? यार currently I am at 1 point overall मैं अगर बोलूँ तो मैं नेटवर्क की बात करूँ या मैं सिर्फ प्रिंसिपल की बात करूँ, ठीक है। क्या फर्क है इन दोनों में, प्रिंसिपल और नेटवर्क में? फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड खरीदा, यू बाय लैंड फॉर 50 lakhs, प्लॉट खरीदा 50 lakhs, उसकी करंट वैल्यू शायद 1 crore है, आप बेचने जाओगे अभी 1 crore आपको मिल जाएंगे, आपको कंसिडर करना है 50 lakhs। अभी आप 1 crore नहीं कंसिडर नहीं करूँगा, तो वो आपका अभी 1 to 2 CR के बीच में है अभी? हाँ, मेरा 1 to 2 CR के बीच में है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। वो अमाउंट जहाँ मैं रिटर्न को तो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न जो आएगा 100 लाख, एंड एक्सक्लूडिंग सर्टन जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जो पैसे आएंगे उसको छोड़ दो। मैंने लाइक आई इन्वेस्टेड ऑन द सेफ्टी साइड ऑल्सो, लाइक रिस्क लिया बट सेफ्टी मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल शायद काफ़ी लोग बोलेंगे, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये सबसे बेस्ट स्कीम है, लगाओ पैसा। आई ऑलवेज से सो कि यार आई ऑलवेज से कि आप अटल पेंशन योजना में पैसा लगाओ, बहुत नॉमिनल फिगर है, कुछ नहीं है, आप उसमें लगा लो, आपको बेसिक सा फंड आएगा, पैसा आएगा और आपको फिक्स आएगा। क्या रहता है अटल पेंशन? यार अटल पेंशन योजना क्या है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट जो था, ये प्रोडक्ट निकाला गया था गरीबों के लिए, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट हाँ हर कोई एक्सेस कर सकता था। अभी गवर्नमेंट को पता चला कि यार सब लोग यूज कर रहे हैं, तो यार इसमें कुछ रूल ले आते हैं, तो अभी आई थिंक रूल ले है कि आप टैक्स पेयर हो गए तो नहीं कर पाओगे। अच्छा। हाँ, रिसेंटली जो पुराने इन्वेस्टर वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अटल पेंशन योजना में क्या है कि आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है 40 साल के एज तक के लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जितने कम एज में आप स्टार्ट करोगे उतना आपको बेटर। तो इसमें ना स्लैब्स हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। आप इन्वेस्ट करो और आपका ऑब्वियसली स्लैब के हिसाब से आप 5000 अगर चाहिए तो क्या है कि आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने जब मैं 30s में था, 29, 30 में था, तब मैंने जब अर्ली 30 में था तब मैंने इन्वेस्ट किया था, और मेरे को ईयरली जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ इसका दैट इज रफली 7000 रुपीज, पीनट्स, नथिंग, 7000 रुपीज देता हूँ और मुझे 60 ईयर्स तक देना है, ठीक है, यानी अगले 30 साल देना है, ठीक है। मैं हाफ ईयरली बेस पे ले लेता है 3200-300 रुपए समथिंग देते हैं, तो 7000 में राउंड फिगर मिल जाएगा। तो वो आपको पे करना है 60 साल होते ही, जो वैल्यू बढ़ेगी सो बढ़ेगी, गारंटीड। मुझे 5000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलेगा, प्लस लेट्स से मैं पास ऑन हो जाता हूँ, आई एम नॉट देयर, देन मेरी बाय डिफॉल्ट मेरी वाइफ को मिलेगा 5000। लेट्स नहीं, नॉमिनी नहीं, वाइफ को बाय डिफॉल्ट मिलेगा। अच्छा, ओके। लेट्स से दोनों पास ऑन हो जाते हैं, अब नॉमिनी की बारी आती है, नॉमिनी को 8.5 लाख मिलेगा। ओके, वन टाइम उसको लमसम मिलेगा, नॉमिनी को कोई पेंशन नहीं, उसको वो लमसम 8.5 लाख। इट इज अ फिगर कि ये आपके हो गया कि आपके जो ओल्ड एज है, और ये मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम कि इंडिया में आया ना, या बच्चा है तो बच्चे के पीछे पूरे माँ बाप ने सब कुछ लगा दिया है, और यही रीजन होता है क्यों माँ बाप ओल्ड एज होम में काफी माँ बाप हैं, राइट। तो यार ये सारी चीजें अपनी रिटायरमेंट के लिए आप सेट करो, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन योर किड्स, वो बोनस है दे दिया ठीक है, उन्होंने आपका सपोर्ट कर लिया, आपके फैमिली में आपके साथ रहे, तो ट्रीट इट एज ए बोनस। बट आप भी नहीं चाहोगे ना कि ओल्ड एज में यू आर आस्किंग योर किड्स फॉर एनीथिंग, सपोर्ट, हेल्पिंग एनीथिंग, राइट। तो आप अगर सेल्फ सस्टेन तो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग आप अच्छे से करके चलते हो, राइट, तो आप हर चीज सही तरह से करो। डीप टॉपिक है ये भी, मतलब पेरेंट्स को भी आज मेरे ख्याल से केसेस हो गए तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नहीं, तो इसलिए वो मिडिल क्लास की सेम स्टोरी है, अभी भी मिडिल क्लास की सेम स्टोरी है, टैबू रहता है, हाँ, बताते नहीं है कितना है क्या है, मिडिल क्लास की सेम स्टोरी है। मिडिल क्लास की एक प्रॉब्लम्स एक्चुअली मिडिल क्लास में इतनी सारी, बिकॉज दैट्स व्हाट मैं एक्चुअली काफी लोगों को एनालाइज कर रहा हूँ, जब मिलता हूँ ना तो आई रियलाइज कि यार आई मेट विद लाइक आई एम बैंगलोर के बंदे से मिला हूँ, पास आउट हैं, 40 ईयर्स में हैं, अर्निंग ह्यूज, दे डोंट नो विच म्यूचुअल फंड। यार सोचा था यार, किसी ने बताया नहीं म्यूचुअल फंड करना कैसे है, दे हैव किड्स, राइट, स्पेंडिंग है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसे हुए हैं, कि बस 30 तारीख आते ही खत्म हो जाते हैं पैसे। एक SBI की रिपोर्ट थी, इंडिया 60% पीपल आर लिविंग
एज टू एज सैलरी, ब्रेक इवन हो रहे हो। और उस वक्त क्या हो रहा था कि जब सैलरी कट हुई थी कोविड टाइम पे, काफी कंपनी ने सैलरी कम कर दी थी, देन टू नेगेटिव, इट इज द वर्स्ट सिनेरियो, देन टू प्योर नेगेटिव, एंड दे नेवर इन्वेस्टेड एनीवेयर, लोन ले लिया, घर ले लिया, और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है मिडिल क्लास की, यार घर ले लो, ठीक है, तो उसी में ही घूमते रहे। घर भी अब गुड़गांव में आप लोगे तो 3 करोड़ का घर, कम से कम 2.5 से 3 करोड़, नोएडा में ले लोगे तो 60-70 लाख से नीचे का घर आपको मिलेगा नहीं। आपने जिंदगी भर अपने लोन फिक्स कर लिया, अब जिंदगी भर लोन दे रहे हो, तो स्टक ऑन दैट रैट रेस। वही है जो रिच डैड पुअर डैड में जो लायबिलिटी वाला साइकिल है, उसी में फंसे हुए हैं। चलो अभी एक बात कर लेते हैं। आपने बताया आपका यू आर करंटली एट 1 to 2 CR. What is the broad breakup? Where is this money invested? How much is property, stocks? What is the percentage broad breakup? प्रॉपर्टी में मैं बोलूँ तो इसका प्रॉपर्टी में रफली 25% के आसपास प्रॉपर्टी में होगा। ओके, 25% प्रॉपर्टी में, एंड वो भी मैंने मतलब पिछले साल किया है। ओके, ठीक है। द गुड पार्ट इज प्रॉपर्टी से मुझे डर लगता है, ठीक है, तो आधा टाइम तो ये लगता रहता है यार कौन फ्रॉड कर देगा पता नहीं। ओके, और मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें। इन टर्म्स ऑफ टेनेंट और इन टर्म्स ऑफ द बिल्डर? नहीं, अब प्रॉपर्टी जब मैंने प्लॉट्स खरीदे हैं, ठीक है, तो 2 चीज होता है, जो आपको बेच रहा है चाहे वो बिल्डर हो कोई भी हो, मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो जो बोलेगा वो सब सही है मेरे लिए। सही बात। बट प्लॉट वाला जो पहले पुराने टाइम में जो पेरेंट्स करते थे ना यार, घर बनाते थे प्लॉट में, वो नहीं करते, ठीक है। कारण यही है कि उनको पता है कि यार इसमें फंस जाऊंगा जमीन में, मुझे नहीं पता भाई ये जमीन के पीछे क्या प्रॉब्लम है, कितना है, क्या इशू है, तो मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है उसमें। चलो, तो आपका 25% प्रॉपर्टी हो गया। देन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूँ म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में, इक्विटी की बात करूँ तो इक्विटी आई वुड बी हैविंग रफली 10 to 15%। गॉट इट। करेंटली, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं रिस्क टेकिंग वाले जोन में एंटर करता हूँ सेफ्टी नेट के बाद, ठीक है, सो दैट इज देयर। देन आई हैव rest all I have in bank FDs, I would say 50-60%. 50-60% in FDs. And these are the SME banks, small FD? Finance bank, yes, small finance bank FDs, right? तो वहाँ पे, and the good part is none of these things are in my name. Where does you have invested in GRIP, yes, right, on platform? Where does it fit into your portfolio? Yeah, in GRIPs I invest is in debt, right? More of a debt for me because surety है काफी हद तक, ठीक है, it's in debt, but in GRIP I'm experimenting with multiple other things like startup investing also, right? Some amount in startup investing also. This XIR looks lucrative, but again 30% cut होने के बाद it doesn't suits me, right? So मैंने कहा ठीक है, let's move into somewhere where, so GRIP में currently मैं startup investing कर रहा हूँ, and apart from that I'm exploring the other platforms also, यहाँ पे startup investing कर रहा हूँ, like Beach Network is there. So basically the 50-60 FD what you are saying is basically the debt portfolio of yours. It's a debt portfolio, right? Good. Right, currently doing with P2P also, so P2P भी वही debt वाले फॉर्म में ही आ जाता है मेरे लिए, so freedom है, so like MobiKwik extra is there, you return of roughly 12 to 13%. 12%, yeah. नहीं 13%. Okay. अगर आप लॉक इन लेते हो तो 12.99%. Okay. Without lock in 12%. Good. That's your choice. And like how is it in terms of risk? In terms of risk, so basically कि जब 12 to 13% का जो percentage है, that is on paper तो risk is always there, right? No one can say यार guarantee है, बैंक भी 5 लाख से ऊपर तो guarantee देता नहीं, ठीक है, but when you say 12 to 13%, that is a very easily achievable number, क्योंकि they are selling it for 24% also, 22% also, interest rate, right? So it's a blend, like it was scenario कि हाँ सबसे आइडल में आप कितना ही चल जाओगे, गिरते गिरते भी वहाँ तक पहुँच ही जाओगे. But still, will advise our viewers and listeners that take these are not investment advice, yes, and take precautions when you are deciding your own portfolios. Anything which is suitable for me, which fits me, it doesn't mean it will fit someone else also. Right. Everyone's risk-taking appetite is different, right? And that's totally different. I always say, you know, आप जो मैंने पहले बोला, आपका पैसा है, आपको पता होना जितना पैसा कहाँ लगाना है. किसी ने बोला, मैंने बोला, किसी और ने बोला, उसके बेसिस पे. Got it. So, what is your investment thesis now? So you have your current portfolio, you have a target. You are earning, you are single. How do you plan your monthly salary now? How do you save? How do you invest? So
currently I'm currently increasing it. So in equity I'm shifting to roughly I think 50% of my salary now. I'm shifting to equity. Okay. कुछ एक्सपेरिमेंट था, स्टॉक मार्केट का सही चल गया एक्सपेरिमेंट, तो नाउ आई नो द हाउ द स्टॉक मार्केट गेम्स रन्स, राइट. और आई एम ए वैल्यू इन्वेस्टर, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बेस पे देखूंगा, राइट. दैट ना उतना मेरे पास पेशेंस है, ना उतना टाइम है, ना उतनी स्किल है कि वो ट्रेडर नहीं हूँ. आई एम नॉट अ ट्रेडर. राइट. So equity in terms of mutual fund and stocks, I'm shifting it to 50% of my in hand. And how do you find time for your research with your busy schedule? And so I always sees in my research, I always check on the EOD time, right? Evening time को मैं देता हूँ, especially not in the day time. जैसे मैंने कहा कि मैं डेली ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे को डेली रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, राइट. मैं वीकेंड पे रिसर्च करता हूँ, राइट. स्पेशली रात का मुझे ज्यादा लगता है कि उसका कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता. दिन में किसी न किसी फोन बज रहे होते हैं, किसी न आ रहा होता है, तो रात के वक्त रिसर्च किया, समझा कि हाँ. और बहुत लिमिटेड स्टॉक्स पकड़े, कुछ स्टॉक्स एक्सपेरिमेंटल के लिए पकड़े कि यार जहाँ पे एक थीसिस मैंने लगाई है. फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट लुकिंग आउट फॉर सम मोनोपोली स्टॉक्स, राइट. और मैंने उस पर एक थीसिस लगाई एंड इट वर्क्स वेल. लाइक गुजरात गैस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल, राइट. मैंने रिव्यू के टाइम पे एक थीसिस लगाई थी, यार गुजरात गैस इज अ मोनोपोली कंपनी, राइट. बट whatever I think, हर किसी को लगता है ना अपना दिमाग हमेशा सही होता है. सही बात. बट टेस्ट करो ना, सही है. How do you test? I invested few. हाँ, some amount मैंने लगाया. मैंने कहा ठीक है यार, पैसा लगाओ इस पे, उस पैसे को पड़े रहने दो. Let's see how much this money grow. Right? And I found that okay, year on year 30%, 40% rate पे grow. So you wait that much with an experimental stock as well? यार हाँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत सिंपल है कि यार आप जब I always believe like plan patiently, execute impatiently. Okay. Nice. ठीक है. तो आप जब कोई चीज सीख रहे हो तो आप हड़बड़ी मत करो, स्पेशली पैसे के मामले में मत करो. मैंने कहा ना, पैसा जाना बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल होगा. राइट. स्पेशली इक्विटी एंड स्टॉक मार्केट में. राइट. तो आप लगाओ. आई टेस्टेड, क्रिएट अ पोर्टफोलियो, टेस्टेड. करेंटली मेरा पोर्टफोलियो 60-70% का रिटर्न दे रहा है. ओके. I'm surely gonna sit with you and open your Grow account to validate all this and get some. So for me it's a very easy thing कि यार ठीक है. So with this kind of portfolio and knowledge that you're building, I'm sure a lot of friends would be coming to you for advice. Right. So you already told us that you just gave them the worst picture possible and then suggest something. Right. Has your advice really gone bad anytime? Yes. No, not yet. The reason is again this thing I only advise on something where I have invested. मैं वो वाली एडवाइस नहीं देता हूँ जहाँ पे मैंने खुद नहीं इन्वेस्ट किया. And you have never been wrong. Till yet, not yet. Touch wood. अभी तक नहीं. But yes, again as I say, you know, अगर जब मैं कहीं पे इन्वेस्ट करने बोलता हूँ, for example, Cred has a product of P2P called Mint. Right? और in my whole group I was the first one who knows about it. So मैंने किसी को बोला कि मैंने कहा इसमें है 9%, तब कोई 12% वाला ये मेरे को लिंक्डइन क्लब वगैरह में डायरेक्ट करना था. वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. ज़्यादा रिटर्न 9% इज अ फिजिबल रिटर्न विच यू कैन गेट इट, राइट. सो मैंने किसी को 9% बताया, क्रेडमेंट बताया, एंड ही सजेस्टेड वन ऑफ हिज कलीग, राइट. कि आई मेट दैट कलीग ऑल्सो रिसेंटली एंड बात मैंने बोला, मैंने कहा सुनो इसमें पैसा. एंड देन शी गॉट टू नो कि यार ठीक है मोबीक्विक का प्रोडक्ट है. मैं आई टोल्ड यार मैंने क्रेड से हटा कर मोबीक्विक में डाल दिया अब. एंड देन शी सेज हाँ क्रेड से तो मैं निकाल लेती हूँ ये हो. और फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये पैसा ना गारंटी नहीं है, ऑब्वियसली, राइट. रिस्क है इसमें. एंड शी वाज इन थिंकिंग दैट नहीं यार मेरा प्रिंसिपल तो क्रेड में सेफ ही है. हाँ, दैट पर्सन मिस्ड टू टेल दैट थिंग. जो मैंने उसे बोला था रिस्क है, कैविएट्स नहीं बताए, राइट. हाँ इसमें पैसा हो जाएगा, चांसेस कम है, पर यार रिस्क आप बताओ. बिल्कुल. और आई ऑलवेज से इसकी यार किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप ट्रांसपेरेंसी ग्रेट रखते हो ना, व्हेन वेदर यू आर गिविंग एन एग्जांपल और समवन सजेशन, इट इंक्रीज द ट्रस्ट. ट्रांसपेरेंसी इज द की टू ट्रस्ट, राइट. तो आप उनको जब क्लियर कट बोला हो ना, कल को वो ये नहीं बोलेगा कि यार आपने नहीं बताया, ठीक है. और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट सजेशन है. चॉइस आपकी है, पैसा आपको है, सोचना आपको है. और जरूरी नहीं जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही होगा, राइट. तो आपको लग रहा है आप इतना रिस्क ले सकते हो तो ही डालो. आपको लग रहा है तो म्यूचुअल फंड में जब मैं बोलता था, अब मैंने अपने कजन को जो बताया था उसका एक्सआई रिटर्न मुझसे ज्यादा है एक्चुअली. क्या बात कर रहे हैं? 50-60% भी नहीं, ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ. अच्छा. स्टॉक मार्केट मैंने उसे बोला अभी दूर रहो. मेरे लिए कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है मैं बोलता पहले म्यूचुअल फंड में खेल ले,
उसके बाद स्टॉक मार्केट को टच करो। आप पहले वो रिस्क एपेटाइट रख लो। लाइक a lot of people comes with a problem कि यार people get, जब नेगेटिव जाता है ना पोर्टफोलियो, वो डर जाते हैं। लोग डेली देखते हैं अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में, लोगों की प्रॉब्लम है ये। और वो सो मैं हमेशा वही बोलता हूँ यार आपको पहले दिन क्या बताया था? अंकल्स आते हैं, हाँ नहीं मैंने बोला आपको बोला था ना 15 महीने 1.5 साल तक नेगेटिव रहेगा। तो हाँ मैंने कहा एक बात आपने एफडी को डेली खोल के देखते हो? उधर नहीं। मैंने कहा तो इसे क्यों खोल के देखते हो? Comparison is very bad, but क्यों खोल के देख रहे हो तुम इसे डेली? मैं अभी भी बोलता हूँ अगर आपका 5 साल तक का टाइम नहीं है, आप इक्विटी में जाओ ही मत। पॉइंट वही है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो ऑब्वियसली लॉस भी होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कि मेरा हर एक स्टॉक ही बहुत फाड़ के करेगा, ठीक है, लॉस होता है, बट आई हैव दैट बिलीव कि यार ठीक है ये भी नेगेटिव है। तो मैंने, और मेरी एक आदत है, मैं कोई भी स्टॉक लॉस में नहीं बेचता हूँ। दिस इज अनदर रूल फॉर मी। Because you have that safety net and you can hold on to it. नहीं, मेरे पास नेगेटिव में है, मैं और एक्यूमुलेट कर लूंगा, मैं एवरेजिंग कम करता रहूंगा। I'll tell you I have such kind of stocks that you will also say बेच दे। एंड मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है मैंने ऐसे कोई गलतियां नहीं की है। देयर इज टिप वाली एग्जांपल बताता हूं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। देयर इज अ कंपनी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी। देखो ना कहीं से कोई टिप्स जैसा कुछ आया, बहुत सारी कंपनी, आप एंड में बस रिसर्च कंपनी ऐड कर दो, ठीक है। कोई XYZ कंपनी था, उसका रिस्क आया, उसका आया कि भाई मित्तल गारमेंट या टेक्सटाइल ऐसा कुछ नाम था उसका, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। आया कि यार इसका स्टॉक ना बहुत ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, और अगेन अर्ली था। मैंने कहा अच्छा ऊपर जाएगा, चलो ठीक है टेस्ट करते हैं। तो मैंने पैसे लगा दिए मित्तल में, और मित्तल को मैंने खरीदा 150 रुपये में। 150 में खरीदा, वो गिरा। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, गिरने दो। मैंने कहा उड़ जाएगा कोई बात नहीं। गिरा गिरा गिरा, वो स्टॉक आ गया 10 रुपए में। ठीक है, और पंप एंड डंप हो रहा था उस स्टॉक में, एक्चुअली पंप एंड डंप हो रहा था उस स्टॉक में। और मेरी प्रिंसिपल वही है कि मैं कोई स्टॉक लॉस में नहीं बेचूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। और वो 8 रुपए में भी आया। 8 से 10 रुपए में मैंने स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। मेरी एवरेजिंग जो 150 पे थी उसको मैं लेकर आया 11 रुपए 12 रुपए। और जब आप एक्सपेरिमेंट का पैसा डालते हैं, कितना डालते हैं आप यूजुअली? यार ये वाला जो था, ये तो खैर मैं ये वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि भाई स्टॉक गिर गया। तो आइडियली क्या है कि मेरा फिगर बहुत नॉमिनल होता है, मैं 10,000 20,000 ऐसे ही फिगर डालता हूँ जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेरे को जहाँ पे स्टॉक पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है कि यार ये कंपनी तो कभी कहाँ, जब ITC कहाँ गिर जाएगी, उस पर डालते रहो, ठीक है। जब ऑप्शन मिला तो मित्तल के साथ ये हुआ कि 8 रुपए पहुंच गया। जब मैंने फिर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया मित्तल को, 8 रुपए फिर एक्यूमुलेट करते मेरा एवरेजिंग 11-12 रुपए आया। ठीक है। फिर मैंने वेट किया, फिर कभी वो 13 रुपए जाता, ठीक है अभी नहीं। फिर वो वापस से मैंने कहा आज पंप एंड डंप हुआ, कल भी इसके ऊपर पंप एंड डंप तो होगा जरूर। वेट किया, फिर अगेन वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट किया, देन वो 20 रुपए पहुंचा, फिर मैंने बेच दिया। गॉट इट। सो यू थॉट that fundamentals are correct and that's why you नहीं, मित्तल के अंदर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया था। मित्तल के ऊपर मैंने टिप पे डाल दिया था पैसे। ओके, इट्स वाज नॉट रिसर्च, मैंने टिप पे डाल दिया था। और उस वक्त जब वो टिप आता है ना, तब आपको बस इंटरनेट पे आप रिसर्च कर लो, आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। वो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। जो पंप एंड डंप हो रहा था, आपको न्यूज़ भी अच्छी मिलेगी कि यार स्टॉक बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। आप आपने देख लिया ना उसका ग्राफ कि यार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है वो, तो यू स्टिक टू इट। और बट हाँ, रूल वही है मेरा स्टॉक मार्केट का, नेवर सेल अ स्टॉक ऑन लॉस। Got it. No, interesting things. Any interesting investments that you have done? Currently, I'm doing for movie bill discounting, OTT web series. Tell us more about this. So there is a concept of bill discounting. I hope you know. Right? Yeah. So production houses हैं, वो अपने मूवीज, तो प्रोडक्शन कोई भी मूवी जब बनती है, राइट, उसके 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। ओके। पहला सोर्स विच इज द टिपिकल रिलीज, दूसरा म्यूजिक राइट्स जो बेचता है किसी को, राइट, एनी म्यूजिक लेबल को बेचता है। तीसरा एडवर्टाइजमेंट्स इनसाइड द मूवी। एडवर्टाइजमेंट 2 तरीके के होते हैं, इनसाइड आउटसाइड, दोनों ही उनकी अर्निंग होती है, ठीक है। और इनसाइड में भी 2 वेरिएशन आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव एडवर्टाइजमेंट। वो कभी डिटेल में बाद में उस पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है। देन फोर्थ होता है OTT राइट्स, राइट। फिफ्थ होता है सैटेलाइट राइट्स, राइट। ये 5 सोर्सेस होते हैं।
ठीक है, जिसमें कोर अर्निंग आपकी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ये मूवीज थिएटर रिलीज ही होती है, दैट्स द हाईएस्ट कंपोनेंट होता है, राइट। तो बेसिकली करते क्या है, हाईएस्ट कंपोनेंट वो आइडियली हिट मूवीज में होता है, राइट। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि जो प्रोडक्शन हाउसेस करती हैं, अगर लो बजट मूवी है, नॉर्मल बजट मूवी है, वो कोशिश करती है इनके थ्रू अपना जो इन्वेस्टमेंट है, इनपुट कॉस्ट है, वो एटलीस्ट 50-60% निकाल लें। ओके कोशिश करती हैं वो, जरूर नहीं है हर बार सक्सेसफुल, डिपेंड करता है कितने बड़े स्टार की मूवी है, क्या है, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक अक्षय कुमार की मूवी के लिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पड़ेगा आपको लगभग, वो लेता है 80 से 100 करोड़ के आसपास मूवी के अंदर एक्टिव ठीक है करने के। तो डिपेंड करता है कि कितने बड़े स्टार की मूवी हो, स्टार का अभी क्या लेवल चल रहा है, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी होगी तो लो कम पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये OTT बेचते हैं, अब ये लोग प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं, ये लोग फाइनेंशियल से पैसा लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इनको देता है पैसा इन टर्म्स ऑफ एट ए रेट ऑफ 36%, 40%, दैट है फाइनेंशियल से वो मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल बोलता है भाई तू मूवी बना रहा है, तुम्हें मैं अब पैसा दे रहा हूँ, मूवी नहीं बनी तो रिस्क तो मेरा बहुत हाई है, मेरा प्रिंसिपल ही फंस जाएगा और इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो देता है। तो जब ये मूवी बन जाती है तो आइडियल क्या होता है, अगर तो OTT वाले आते हैं राइट्स खरीदने के लिए, अगर बड़े स्टार की मूवी है विच इज ए पैन इंडिया मूवी काइंड ऑफ स्टफ, KGF टाइप की होगी, तो मूवी बनते वक्त ही और प्रोडक्शन हाउस बड़ा है तो OTT वाले आकर राइट्स ले लेते हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम तभी बन जाता है अगर बड़े स्टार की मूवी है। यहीं पे अगर थोड़ा मीडियोकर स्टार की मूवी है, प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा नहीं है, तो मूवी जब तैयार हो जाती है, जब उसके बाद सेंसर सर्टिफिकेट आ जाता है, तब OTT राइट दिखते हैं उसके, ठीक है, या ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जब होती है मूवी तब OTT राइट दिखते हैं। ये प्रोडक्शन हाउस के पास इतना ज्यादा नाम नहीं है, इतना रेपुटेशन नहीं है, और वो एक्टर भी छोटे मोटे लेवल का है, इतना ज्यादा हाई फाई लेवल का नहीं है, तो इस वजह से उसमें बिलीव नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल इज ए मूवी, सूर्या एक एक्टर है, जो सिंघम मूवी है, ओरिजिनल जो तमिल में मूवी बनी थी सिंघम, उसमें सूर्या एक्टर था, राइट। ही वाज ए टॉप एक्टर, टॉप नॉच एक्टर। सूर्या, आपने विक्रम देखी होगी, विक्रम में जो लास्ट में विलन आता है ना, इसकी जस्ट छोटा सा एंट्री कैमियो दिखाया था लास्ट में एंट्री अंदर, ही सूर्या, राइट, ठीक है। तो उसकी मूवी आ रही है सूर्या 42 नंबर की मूवी, करेगाल समथिंग नाम है, व्हिच इज ए पैन इंडिया हिस्टोरिकल बेस्ड मूवी, ठीक है। अब ये मूवी बनना स्टार्ट हुआ है, बन रहा है, शूटिंग चल रही है, इसको OTT राइट्स ऑलरेडी बिक चुके हैं, ठीक है, बिकॉज उनको पता है ये मूवी यार पैन इंडिया 10 लैंग्वेज में रिलीज होने वाली मूवी, इट्स ए बिग शॉट मूवी, बहुत पैसा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। OTT राइट्स बिक चुके हैं। सिमिलरली विक्रम की मूवी है थंगलान, इसके ऑडियो राइट्स बिक चुके हैं, ठीक है। अब ऑडियो राइट्स से पहले बिक जाते हैं, ये दो चीजें पहले होती हैं, ऑडियो राइट्स और ये ऑडियो राइट्स जब भी बिकता है, आपको जो लेबल कंपनी है वो बोलती है, म्यूजिक लेबल कंपनी बोलती है कि हम तुम्हें पैसा तब देंगे जब मूवी रिलीज होगी। तो ऑडियो अगर बिका है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मिल गया तुम्हें, सही बात है, मिलेगा तभी जब मूवी रिलीज होगी, ठीक है। तो वो एक क्लॉज होता है, क्योंकि वो लोग ये क्लॉज देते हैं आप ऑडियो तब तक आउट नहीं कर सकते मूवी रिलीज ना हो, सही बात, राइट, या रिलीज होने के आसपास ना आ जाए ट्रेलर वाले कंपटीशन। OTT वाले बोलते हैं हम तुम्हें पैसा तब देंगे जब आप हमारे OTT में आएगी मूवी, लॉन्च पे, OTT पे लॉन्च, और वो टाइम लाइन डिपेंड करता है कि मूवी जब थिएटर पे रिलीज होती है तो हिट गई तो ज्यादा टाइम के लिए थिएटर पे रहेगी, OTT में लेट आएगी, फ्लॉप गई तो थोड़ी जल्दी आ जाती है, सही बात, राइट, जो बॉलीवुड में भी देखा ही होगा। अब जो प्रोडक्शन हाउस है इसके लिए तो खर्चा, इसको 40% का इंटरेस्ट लग रहा है ऑलरेडी, 36 से 40% का। ये बोलता है कि भाई Amazon मुझे देगा पैसा, तो आप एक काम करो, मेरा बिल ले लो आप Amazon वाला, that Amazon has to pay that, हाँ, it will pay me, राइट, Amazon मुझे पे कर देगा, Amazon आपका बिल है अब आपको पे, but Amazon will pay me in let's say 90 days, 2 months 3 months जो भी टेन्योर होगा, अगर जैसे वो वाली मूवी बताई वो 12 महीने बाद कंप्लीशन का जो टाइमलाइन है, और ऑब्वियसली उसमें डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं उनमें तो आपका शॉर्ट टर्म ही रहता है, लॉन्ग टर्म वाले में थोड़ा आगे हो सकते हैं, शूटिंग चल रही है थोड़ा आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ यार ठीक है, मैं इतना इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है, एक बिल वैल्यू बनती है, इतना इंटरेस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और Amazon मुझे पे करता है, तो भाई वो मेरे लिए सेटलमेंट होता है। फॉर एग्जांपल वो बोलता है भाई मुझे 100 रुपये दे दो, ठीक है, Amazon जब पे करेगा मैं Amazon से 120 रुपये ले लूंगा और बाकी पैसे तुझे दूंगा, ठीक है। तो वो जो इतना टाइम का था वो मेरा जिम में गया, ठीक है, वो मेरा इंटरेस्ट, तो इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इसके ऊपर जो टैक्सेशन भी लगता है वो भी इन टर्म्स ऑफ जैसे सेविंग अकाउंट में आपका लगता है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट यू सी इन XIRA टर्म्स ऑफ, यार रेंज इट विल बी रफली गोज अराउंड 15% to
18%, Good. रखिए आप उतना लेकर। Good. Nice. ऑब्वियसली ये एनुअल रेंज है, जितने टाइम का आपका होगा। प्रो डाटा बेस पे कभी अमेजोन बोलता है जल्दी पे कर दूंगा 50 दिन में, तो प्रो डाटा बेस पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, Got it. राइट? दैट इज व्हाट इट गोस। एंड फॉर एग्जांपल अभी जो मूवी रिलीज हो रही है, देयर इज अ साउथ मूवी कॉल्ड महावीरन, राइट? तो वो 14th को रिलीज हो रही है, Got it. राइट? सन टीवी जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इट्स अ बिग नेम, राइट? तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्शन हाउस का जो हीरो है वो भी नया है, मूवी कंप्लीट हो चुकी है, अमेजन प्राइम ले रखा है, तो Got it. क्या कर सकते हैं। Cool. So it was a really nice session learning from you. I'll try to like tie it all together. Okay. So basically, I really learned a lot from this session. Like you must know what you are investing in. You should not sell your stocks when you are on a negative side. You should have some comfort level when you're trying out equity investment or other kind of investment, and do a lot of research. Do not invest blindly based on certain tips, Right. and lot more. And thank you for sharing all this, Ranjit. Now we are moving to a section we call rapid fire round. Okay, I'll just give you some option. You have to choose one out of it or explain that, right? And whatever comes to your mind first. Okay. So what would you say best stock trading app? Zerodha. Financial advisor or do it yourself? Depends purely. For myself, for my person, it's do it yourself. Got it. Short term or long term investments? Combination of both. High risk, high return, or low risk, low return? It's a similar question of short term versus long term. So I would say combination of both, right? Having a balance of your debt and equity both. Got it. Who is your favorite financial influencer? Influencer, I would say, यार बहुत सारे हैं, बट आई वुड नॉट से कि कोई फेवरेट है एज सच, बट हाँ करंटली देयर इज अंकित इज डूइंग गुड, राइट? मार्केट माइस्ट्रो इज द चैनल नेम, एंड देन वो इतना मेन स्ट्रीम नहीं होगा, बट हाँ ही इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजिंग। एंड देयर आर फ्यू अदर जो मेन स्ट्रीम हैं इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक फ्यू नेम इज Pankaj is there, then there is Finology is there, like the guy Pranjal Kamra is there, Yeah. right? Invest Aaj for Kal is there. Fixed deposits or alternative investments? It's again, it should be a balanced. Initially, you should stick to fixed deposit if it's giving a good return, not the 7%. Got it. Right? If it's 7 or 7.5, 8%, don't go to fixed. Shift to alternative. Rather, I would say alternative investing or P2P. Shift to there, but have certain backup, like where you have the liquidity. For example, like in saving accounts, right? IDFC First Bank give you 7% return, right? Beyond 10 lakhs. Have that account in saving account instead of having to any government bank's FD. 7% आपको पर मंथ मिल रहा है, तो XIR रिटर्न तो बेटर ही है, ठीक है? कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल जाता है। P2P 12% is still a very decent one. 8.5, 9% FD, right? स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्टिल लाइक 5 lakhs की ही आपकी गारंटी है, कोई भी गवर्नमेंट आपको 5 lakhs की DIGC का इंश्योरेंस का मिलता है। स्टिक टू देयर, राइट? एंड हैव सर्टेन अमाउंट देयर एज अ बैकअप, लाइक लिक्विड फंड के, हाँ ठीक है ये मैं यूज कर सकता हूँ। Physical real estate or gold? गोल्ड इज ए टोटली नो फॉर मी। Any specific reason? आप गोल्ड का रिटर्न देख लो, पास्ट 10 years का देख लो। Inflation. नहीं रिटर्न देख लो, इन्फोरेशन छोड़ लो, नॉर्मल रिटर्न देख लो, एवरेज रिटर्न, यू विल नॉट गेट नथिंग, इट्स जस्ट पीनट्स। गोल्ड एक टाइम तक अच्छा था, अब नहीं बोलूंगा गोल्ड, क्योंकि यू हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस, और गोल्ड के अंदर ना SGV पीपल स्टिल सेज, यार सम पीपल सेज इन्वेस्ट कर लो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आई टेस्टेड, बट आई ऑलवेज सेज कि यार गोल्ड इज नॉट समथिंग, रियल एस्टेट इज स्टिल गिव यू बेटर रिटर्न, स्पेशली व्हेन इट्स ए कमर्शियल रियल एस्टेट, राइट? Although commercial real estate give you a return of 9 to 10% in terms of rental yield. 9 to 10% is very easy in commercial. In terms of rental yield. Appreciation आपका real estate का जो होगा सो होगा. In case someone is struggling in terms of like amount, the commercial real estate take, you have platform like Strata, where you can get commercial real estate at a investment of 20 lakhs. 25 is their minimum. 25, 20, Yeah. or you can invest through group. I think through your platform also. In Strata you have tie-up, right? So I think 2 lakhs or 1 lakh. We will be- bring down that investment option at 1 lakh rupees. Yes. So someone investing there, you can have a partial investment out there. The rate I still not suggest people.
बिकॉज उनके पास कौन से प्लेटफॉर्म्स कहाँ पे कर रहे हैं एंड परफॉर्मेंस वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आते हैं, रेट भी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है मार्केट। गॉट इट। बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग अ हाउस? रेंटिंग हाउस वाले बहुत सुनाएंगे मेरे को। they prefer buying a house, and again for housing housing is more of an emotional decision, right? People take it. If you want to have a stay with your family, right, you want that certain things you can't count it on returns. For example, I like places in nature, right? Having a place in nature, right? Let's say maybe recently property dekha tha which is in front of Ganga river in Haridwar, right? Surrounded by hills. Ganga बिल्कुल joint होके जा रही है. You get that calmness, peace of mind. वो आप काउंट नहीं कर सकते हो ना रिटर्न से, राइट? और हाँ, पर घर वही है जहाँ पे आपको सुकून मिले. तो अगर आप रेंटल पे रह रहे हो और आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो बेटर है बाय अ हाउस समवेयर वेयर यू कैन स्टे, राइट? बट व्हेन यू टॉक अबाउट मैथ्स ऑन पेपर, राइट, हाउसेस इन्वेस्टमेंट इज रॉन्ग इन हाउस. डोंट इन्वेस्ट बिकॉज जो कॉस्ट बढ़ चुका है दैट इज टू मच, राइट? बाय समवेयर इफ यू वांट टू जस्ट स्टे, और अपना या फिर नेटिव प्लेस जो है वहाँ पे काइंड ऑफ रिटायरमेंट होम समवेयर गुड यू कैन क्रिएट इट. वहाँ पे आपको सुकून चाहिए, गए रिलैक्स हुए, सुकून लिया, then वापस back to the field, right? Here you can take rent. No, fair advice. Indian stocks or US stocks? Indian stocks. Individual stocks or index funds? Initially start with index. Someone who is starting new should stick to index. Once he start having that kind of time, research, knowledge, wisdom, then try experimenting slowly, steadily towards individual stocks. And thank you for the rapid fire round. We have a gift hamper for you. Coffee with computer. So I have one last question for you. If you were to start from scratch, how will you start your investment journey if you had just 10 lakh with you? Okay. So in that case, again, 3 to 4 lakhs into FD, 2 to 3 lakhs into GRIP. Oh, thank you. Like debt parts or startup equity, like not startup equity. Debt. Okay. Because when you have 10 lakhs, right? So you have a lot of things to lose, right? Startup, you need to invest 2 lakhs minimum. Yeah. Right. So better to stay out of it, and it's too much risky is there. Right. Invest in LeaseX kind of product, or you have your corporate leasing other products. You can invest in bonds. That thing you can invest. Few things into P2P. 1 lakhs roughly into P2P. It will be through any other platform where you're getting 12% return roughly. And I think 3 lakhs here, 7, 8, and 2 lakhs into equity mutual fund. So basically, recently we are using this tagline with GRIP. We call it "Go beyond volatility, go beyond inflation, go beyond low returns." What is your go beyond mantra for your investment? Take a balanced risk. Got it. Right. More important thing is, apart from earning, the important thing is saving your principal. But don't go anything extreme. Like एक saying है ना, अति is khati. Anything extreme will always damage you. Yeah. Right. Yeah. So have a balance between things, whether it's in terms of debt, whether it's in terms of equity, risk taking, and try to elevate yourself level by level, slowly and steadily. Don't be in a rush. Like suddenly मुझे like anything which goes faster, right, up, it will come down also faster. Right. Don't go in a rush. Go steadily, small, like slow and steady, and have a balance between both the things. And that's what is important, whether it's your job and personal life or whether it's investment. Yep. Thank you for your go beyond mantra. So that was Ranjit with us. I really enjoyed the conversation today. I learned a lot about the ratios, the philosophy, a lot more also about the management and the sales, how those were done. I hope you liked the session. Thanks for tuning in. Please do like, share, subscribe our YouTube channel. And if you have any questions, please feel free to put them in the comment section and our team will reply back to you. So till then, get a grip on your money and go beyond.